just to be a part of this lecture. I am welcoming you, Maninder sir, on behalf of all the BHU juniors, seniors, and my batchmates. Welcome, Good morning, sir. Sir, you can off your mic. जब भी आपको कुछ भी बात कहनी है, तो you can off your mic, on your mic, and then you can keep it on off. That's okay. सुनाई तो उनको दे ही दिया होगा. Formal welcome. चलो, just going to for the revision. The topic we are going to revise through Ashwani, which were lever, its mechanical advantage, and I want to know also that oxygen depth में normal जब aerobic respiration होता है तो क्या कैसे energy breakdown होता है, क्या waste product निकलता है, और जब anaerobic respiration होता है तो directly glycogen से क्या waste product निकलता है, ये भी मैंने पिछली बार थोड़ा discuss किया था बहुत short level. I want to know these things also. So please Ashwini, go ahead for the revision part. अभी तक जितनी भी हमने 3-4 यूनिट कवर की है उसमें तो किसी को डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में डाल देगा. We will come to it. There is no issue. लेकिन अभी रिवीजन अश्विनी के थ्रू होगा. 5 से 10 मिनट्स रिवीजन के लिए जाते हैं. Then we will further move to project टाइम. ठीक है? Yes, sir. प्रक्षेपण पे जाएंगे. Okay. तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव मोड में रहिएगा और माइक्स ऑन रहेंगे सबके. अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग, और जो भी आपको जवाब आएगा वो बताइएगा. ठीक है? ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है, हमें फास्ट करना थोड़ा सा. तो चलिए मोशन को डिफाइन कर दीजिए सभी लोग. माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए. हाँ बताइए. तो कोई भी चीज अगर मूवमेंट में हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें सर movement of the object is called motion. ठीक है, गुड. A change of position of any object is called motion. वेरी गुड. चलिए चलिए बोलते जाइए. इसके अलावा और कुछ अडैप्ट करना चाहेगा? चलिए टाइप्स ऑफ मोशन बताइए. कितने टाइप्स ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं? मैंने आपको कहा भी था कि आप थोड़ा सा लिटरेचर देखिएगा, अलग अलग जगहों पे दिया हुआ है. सर सर्कुलेशन, रोटेशन, लीनियर, ऑक्सिलेटरी और पीरियोडिक मोशन. ठीक है, वेरी गुड. और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कीजिए. Scalar quantity is those quantity in which only a magnitude is present, and vector quantity is those quantity in which direction as well as मैग्नीट्यूड एंड स्केलर इसमें दोनों रहता है. वेरी गुड. चलिए मास क्या है? डिफाइन मास. It's a scalar quantity. Yeah, and what's its definition? सर the object जिसमें सर फोर्स नहीं होता है, विदाउट फोर्स जो हम मेजर करते हैं. हाँ, बट एक्चुअली मास होता क्या है? Can we say it's the density of the particle of matter? Yes, sir, density. Or the amount of particles a matter contains. Can we term it as a mass? Sir, I think mass a large amount or number of something is called mass. Number of something means number of what? You must know. Ordinary people when considered as a group. Okay. A group is called mass. Okay, that's also a meaning of mass. If we talk about human being, what is mass? And what are its characteristics?
It's not going according to my way. I'm unmuting all the participants. You must be interactive in the whole session. It's like a rapid fire round. Whatever you know, you can speak. We can have a healthy discussion on it. Okay, means you can say that the absolute measurement of particles around any matter is known as mass, or it is a scalar quantity. Its characteristics are it is a scalar quantity and it's not having any particular direction. And what is weight? The quantity which can measure a human being in kilogram. In respect to kilogram. Is force respect acting to on the it due to its central of inertia. gravity, force of gravity. Yeah, that's a little bit correct. And what type of quantity it is? It's a scalar quantity or vector quantity? It's a vector quantity. Vector quantity, very good, because it has magnitude as well as direction. And what is distance? What, sir? Distance? Sir, scalar quantity. Scalar quantity. And displacement? Distance. Vector quantity. Vector quantity. What is the definition of displacement? A shortest distance between initial point to final position. It's called very displacement. good. And what do you mean by acceleration? A rate of change of momentum is called acceleration. Acceleration, very good. And what do you mean by momentum? F is equal to. Sorry. विश्वजीत, मोमेंटम को डिफाइन कीजिए. The momentum is defined as a body velocity and body weight. Yeah, we can say that its formula is P equal to mv, where P equal to momentum, m equal to mass, and v equal to velocity of that particular V is equal body. to velocity. Yeah. And what do you mean by impulse? Impulse. Yeah. Initiate reaction. Sir, force is force and time. Force into time means you can say that impulse is also the rate of change of average momentum. Means if we combine all the changes of acceleration, we can term it as combinedly as a impulse. Okay. Anyone can Once again, impulse, rate of change of average momentum. You can say that, or if you talk about formula wise, it's force into time. Force is multiplied by time. Yes, sir. Okay. And anyone can recall the equations that Siddhartha told you day before yesterday? Yes, sir. Muscle soreness or muscle cramp? No, the equations of motion that Siddhartha told us. The 3 equations of motion. Anybody is able to recall that? If not, that's not a problem, because you don't have to go such in a deep. The first one is V equal to U plus 80. Okay, we are moving forward. What is Newton's first law? Newton F is equal to Newton first law is a law. Sir, formula or definition? Law of inertia. Law of inertia. And what do you mean by inertia? When any object remain its on position, when it is in motion, it's remain in motion. When it is in a rest position, it's remain in it state unless until a external force to change a position. Unbalanced force is Yes. acted on it. Okay, and what do you mean by inertia? There is a property of force Yeah, very good. that can change our
body conditions. Property of force. Yes, sir. Okay, and That can change our body motions. okay, सभी ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया होता है, Yes, sir. Yes, yes. and we can say that is the collection of mass. Yes, sir. So we can define inertia in a way that it's an inherent property to resist. Okay, yeah, provide resistance against force. Or one thing I would like to add up that I got in some literature. I got it from a Springer book, that is of biomechanics, sport biomechanics. In that I found that in 1686, this Newton's law were published in a journal. You can write it down because it will be useful for some of the competitive examination if some question will be asked. And this Newton's first law is also known as Galileo's laws of motion, because earlier Galileo was working on it and Newton added some of the things. So in some literature we will also get that Newton's law of inertia or first law can also known as Galileo's law of motion. Okay, so start with some examples of Newton's first law. Football. Okay, A football on a ground. a football on a ground. The static position. Second example. Sir, a human is stand on a ground in static position, or anatomical position. Okay. Suppose you are standing in a bus. Okay, suppose you are standing in a bus and the bus is moving, Yes. and Yes, sir. the driver applies brakes suddenly. Describe the Newton's law of motion in that scenario or in that case. सर इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा क्योंकि सर जब ब्रेक लग रहा है तो अनबैलेंस फोर्स जो हमारे लग रहा है सर वो लॉ ऑफ इनर्शिया का काम कर रहा है, जिससे कि हम मूव मतलब फॉरवर्ड मूव करते हैं. वेरी गुड. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Law of acceleration, rate of change of momentum. Yeah, means we can say that F is directly proportional to acceleration and inversely proportional to mass of the body. ठीक है, अब इसका implication क्या होगा? When catching a ball catch. Okay, here I am having a situation. Suppose it's a concrete first, or like the court as we have of basketball in amphitheater ground, and suddenly someone pushes you from the back and you fall down on the floor. आप फ्लोर पे गिर जाते हैं, तो आपको चोट क्यों लगती है? What is the mechanical principle involved in that? सर मास एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन के टू. हाँ, उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए. सर क्योंकि एक्सेलरेशन सर जो रहता है वो ज्यादा होता है और सर फोर्स के हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सर चोट लग जाती है. क्योंकि जो हमारा सर सीजी रहता है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है. क्योंकि जो हमारा मास है वो बहुत जल्दी, जैसे अब आप इस पोजीशन में हैं, आप खड़े हैं, आपको किसी ने धक्का दे दिया, आप बहुत तेजी से नीचे गिरे, तो जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, इतनी फास्ट हुई और उसके बाद जीरो हो गई. कोलिजन के टाइम आपकी जीरो हो गई, जैसे आपने फर्श को कांटेक्ट किया उसके बाद आप मोशन नहीं हो रहा है उसके बाद, यानी जो मास है वो इतना ज्यादा एक्सेलरेट हो गया. और सरफेस से क्या है कि आपको जरा सा भी शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस नहीं है,
तो वो उस मास को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी स्पीड कम या ज्यादा नहीं करेगा। तो तुरंत आपकी बॉडी ग्राउंड के या फ्लोर के कांटेक्ट में आ जाएगी, और जो आपकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप कह सकते हैं, वो तुरंत जीरो हो जा रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जीरो हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको चोट लग रही है। सपोज यही अगर कोई कुशन वाला फ्लोर होता तो, या वुडन फ्लोर होता, तो कंपैरेटिवली आप कम हर्ट होते, क्योंकि वो भी एक फोर्स आपको जनरेट करेगा जो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा धीरे धीरे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कैचिंग अगर कर रहे हैं, कोई भी बॉल आप अगर कैचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप उसका मतलब क्या हुआ, यानी आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग एक्सटर्नल इम्पेटस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो उसका इम्पेटस आ रहा है उसको आप, अगर बॉल आ रही है आपके पास, आपने उसको यहीं पकड़ लिया, फोर्स से मारा। आप मान लीजिए क्रिकेट में अगर शॉट पे फील्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल पास में एकदम पिच के ऑफ साइड में शॉट होता है, तो वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, बॉल फास्ट उसने बैट्समैन ने हिट की और आपने सीधा ऐसे पकड़ लिया, क्या होगा कोलिजन का? आपको चोट ज्यादा लगेगी, उस शॉक को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। आप कुशन लाइक प्रिंसिपल जब अप्लाई करेंगे उस पे, उसको बॉल कांटेक्ट से जस्ट पहले थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, तो आप उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के इम्पेटस को ऑब्जर्व करेंगे और मिनिमाइज कर देंगे, उसकी स्पीड को धीरे धीरे जीरो कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे भी न्यूटन सेकंड लॉ आपके अप्लाई होता है। चलिए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? सर मीन फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है। सॉरी, फिर से बताइएगा। सर फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है। फोर्स सरफेस पे डिपेंड करता है। I am not getting a question. If it is related to the basketball floor, मीन्स आप उस सिचुएशन की बात कर रही हैं जो हमने एक फ्लोर का एग्जांपल लिया था, बास्केटबॉल हार्ड सरफेस। हाँ सर, मतलब अगर हार्ड सरफेस है तो टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो भी जिस सरफेस के अगेंस्ट आप एक्ट कर रहे हैं उस पे फोर्स डिपेंड कहना चाहती है कि रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एक्चुअली। नहीं, अगर ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे जो फ्लोर है उसमें शॉक एब्जॉर्ब करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, वो आपको असिस्टेंट नहीं दे सकता है, आपकी जो वेलोसिटी आ रही है उसमें सडन ब्रेक थ्रू जो हो रहा है उसमें वो आपको फैसिलिटी नहीं दे सकता है, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ डेंसिटी ऑफ इट। जो उसके सॉलिड पार्टिकल है वो, और उसके मॉलिक्यूल्स जो इतने डेंस हैं कि आपको कुशन लाइक स्ट्रक्चर वो नहीं दे सकते, जिसकी वजह से आपके फोर्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और यही अगर कोई सॉफ्ट सरफेस होता है या आप अगर मैट्रेस वहां यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग फोर्स का इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो डी शेप होगा और जो आपका सडन वेलोसिटी जीरो हो रही है उसको थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ टाइम ज्यादा मिलेगा कम होने में। सर ऐसी अगर फुटबॉल के ग्राउंड में अगर प्लेयर करता है और वो रोलिंग करता है, हाँ हाँ, तो इंजरी कम होती है उसमें। हाँ बिल्कुल, मींस डाइविंग कर रहे हैं ऑफ फोर्स लगेगा। सर थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा बार फिर से पूछेंगे क्वेश्चन। सर जैसे कि एक फुटबॉल में प्लेयर भागता हुआ आया और उसने दूसरे को ब्लॉक किया, हाँ, तो उसमें सर अगर गिरता है एक तो सर इसमें ट्रांसफर ऑफ फोर्स लगेगा इसके अंदर क्या? नो, तो उस वो फुटबॉलर नीचे ग्राउंड पे गिर रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं, या उससे जो टकराने की वजह से वो डाइव कर दे रहा है? जो गिर रहा है सर, तो ग्राउंड से कांटेक्ट के रिलेशन में आप बात कर रहे हैं या प्लेयर से कांटेक्ट के रिलेशन में बात कर रहे हैं? सर प्लेयर के कांटेक्ट से। तो प्लेयर से कांटेक्ट होगा तो वो अगर जिस पार्ट से अगर कांटेक्ट हुआ उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी हार्ड बोन हार्ड से कांटेक्ट होगा तो उसको इंजरी होगी। आएगा बीच में। हाँ कुछ कह रहे हैं सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो याद रहेगा ही। हाँ, मैं चश्मा बार-बार पहन रहा हूँ। यार न्यूटन्स थर्ड लॉ तो रहेगा ही रहेगा। हाँ हाँ, कि जितना फोर्स लग रहा है जिस सरफेस पे लग रहा है, अगर वो एल्बो से उसमें फिर कोलिजन थ्योरी आ जाएगी ना सर, तो फिर थोड़ा सा हम डीप चले जाएंगे। बहुत बेसिक है। हाँ, एरिया और एक संबंध होता है जो प्रेशर का होता है, एरिया के साथ
वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है बिल्कुल बिल्कुल कि अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट टकरा रहा है जिसका एरिया ज्यादा है, हाँ वही तो मैंने वो उनसे कहा जिस कि बॉडी पार्ट में प्रेशर कम क्रिएट करेगा। अगर एल्बो लगती है तो एल्बो, क्योंकि इसका एरिया कम है, बोनी प्रोजेक्शन है एक तरह का, तो ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। एज बिल्कुल एरिया इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। तो यहाँ कई चीजें एक साथ काम करती हैं। हाँ लेकिन अगर बिल्कुल थर्ड लॉ की बात करें तो यहाँ ये देखना पड़ेगा कि भाई टक्कर हो रही है, बराबर की टक्कर हो रही है। इसीलिए जो हेड टू हेड कोलाइजन होता है वो सबसे खतरनाक माना जाता है, जी जी क्योंकि वो न्यूटन थर्ड लॉ का बड़ा आइडियल एग्जांपल। सेम सरफेस है, एक दूसरे से टकराई। और हमारे यहाँ एक लिनेट खाका नाम की बच्ची होती थी हाँ हाँ कबड्डी की, हाँ मैं बच्ची का सॉरी यार, लिनेट खाका मेरी जूनियर थी कबड्डी की। हाँ शी इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर PHU नाउ। यस सर, वेरी रिसेंट। और मुझे याद है कि इंट्रामुरल चल रहा था क्रिकेट का, एंड दो लड़कियां आपस में टकराई, वन वाज लिनेट एंड वन वाज सम अनदर गर्ल। और लिनेट का जो सर फटा था ना, आई वाज द ओनली विटनेस, वहां पे मैं खड़ा था, आई वाज जनरल सेक्रेटरी। उसका सर फटा था लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक 8 टाके आए थे, लेकिन दूसरी लड़की का सर नहीं फटा था। तो वो बार बार लिनेट को मैं ले गया, सर सुंदर लाल, मैंने पूरे टाके कराए, मेरे सामने उसके टाके हुए। तो लिनेट पहली बात तो बहुत बहादुर थी, रोई नहीं। दूसरी बात वो बार बार ये बोल रही थी कि सर दूसरी लड़की का सर क्यों नहीं फटा। तो यहाँ एक और चीज बात आती है जो हम लोग बात करते हैं कि फोर्स एप्लीकेशन का एंगल क्या रहा। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली जो दूसरी लड़की टकराई वो किस एंगल से टकराई, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के फोर्स टकराए होते ना, बिल्कुल एक दूसरे से परपेंडिकुलर टकराए होते, दोनों का सर जी बराबर आता है, उसका कोलिजन का इम्पैक्ट बराबर आता। आवाज तो क्या हुआ भाई? कि वो किस पार्ट से हिट कर रहा है और किस पार्ट को हिट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बट हमेशा याद रखना कि इंजरी कोलाइजन के केस में हमेशा ये देखना है कि 90 डिग्री पे कोलाइजन है कि नहीं। अगर 90 डिग्री पे कोलाइजन है तो एक्शन लॉ के तहत सबसे ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला था मोशन के बारे में कि एनीथिंग विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विच इज इन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो इट इज इन मोशन। बट ये कैसे पता लगेगा कि ही इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हु आर रेफरेंस पॉइंट। आप इलाहाबाद से गोरखपुर जा रहे हैं तो वहां इलाहाबाद फिक्स है, तब तो आपको पता लग रहा है गोरखपुर जा रहे हैं। नहीं तो आप जा रहे हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। whenever you are talking about motion, वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स रहता है जिसके वो मोशन को डिफाइन करने वो वाली। मैं चश्मा के लिए सॉरी बोल रहा हूँ यार, मेरी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं लगा नहीं कि मुझे दिखाना चाहिए कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, इसलिए भी मैं पहन रहा हूँ चश्मा। आंखों में जलन हो रही है इस वजह से मुझे आज ऐसा चश्मा सही है, कल शायद ना लगाऊं। तो ये आज के लिए रिवीजन अच्छा। लेकिन मेरी वो है कि बाकी लोग ना न्यूटन फर्स्ट लॉ को बहुत, मुझे लग रहा है, दिल से लगा के बैठ गए। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का इनर्शिया ब्रेक ही नहीं हो रहा है। 2-3 पार्टिसिपेंट ठीक इनर्शिया ब्रेक है, बाकी इनर्शिया में बने हुए हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इनर्शिया। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी होता है। ये इनर्शिया जो है साइकोलॉजिकल भी होता है। जब आपको आपकी पसंद की सब्जी नहीं मिलती है ना तो आप चिढ़ जाते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ गेटिंग समथिंग। जब आपको क्लास में उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो आप सोचते हैं, तो भी वो एक इनर्शिया ब्रेक होने लगता है, तब आप डिस्कम्फर्ट फेज में चले जाते हैं। ये इनर्शिया हर जगह काम कर रहा है। साइकोलॉजिकल इनर्शिया जब भी ब्रेक होता है, आपका मोशन स्टार्ट होता है, डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होता है। मेन वही है कि थोड़ा हेजिटेट करते हैं। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है, लेकिन अपने वर्ड्स में सर मैंने अपर हैंड, तो वॉलीबॉल में अपर हैंड करते हैं सर, ऊपर कीपर में आता है क्या? मतलब बूस्टिंग ना, दिस इज बूस्टिंग। हाँ सर, हाँ सर।
हाँ, तो तुमको कैसे लगता है ये थर्ड लॉ है या फर्स्ट लीवर लग रहा है? सर क्योंकि सर फिंगर में फिंगर सर हमको लोड पड़ रहा है, हमारा जो रेडियस आना। एक सेकंड रेजिस्टेंस डिफाइन करो, इसमें रेजिस्टेंस तुम्हें क्या लगता है क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? सर हमें सर दो जगह सर दिक्कत आ रही है। एक रेजिस्टेंस समझने में आ रहा है कि रेजिस्टेंस सर हमने क्या पढ़ा था लीवर में ना, जब हमने थोड़ा सा एक यूट्यूब पे पढ़ा था तो उसमें लोड और फल्क्रम और इफेक्ट की बात की थी इसमें। हाँ, तो लोड इज रेजिस्टेंस है। हाँ तो सर इसमें सर आप क्या पूछ रहे हैं सर? अभी मैंने बताया तो अब लोड क्या है? जैसे तुमने ये नहीं लोड, व्हाट इज लोड? डिफरेंट थिंग। लोड तो चलो वो पता है कि जो रेजिस्टेंस है वही लोड है। लोड वो चीज है जिसको आप लीवर के थ्रू ओवरकम करना चाहते हैं। सर रेजिस्टेंस सर ज्यादा रहेगा सर। रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? इस अगर 3 कंपोनेंट है लीवर के, एक्सिस और फोर्स एंड रेजिस्टेंस, तो इसमें फोर्स कहां से मिल रही है, रेजिस्टेंस क्या है और एक्सिस क्या है? एक्सिस तो मेरे हिसाब से डबल एक्सिस होता है। आपका ये रिस्ट जॉइंट भी काम करता है और आपके फिंगर्स भी काम करते हैं। रिस्ट बहुत ज्यादा काम इनिशियल अश्विनी ज्यादा अच्छा बताएगा क्योंकि लेकिन ये ध्यान रखना है कि लीवर का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए जब आप बूस्ट करते समय आपकी पोजीशन जब अलाइन होती, यानी जब आपका रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट और एल्बो जॉइंट एक लाइन में आता है, ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तब आपको मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि आपका फोर्स आर्म बड़ा हो जाता है। मैंने कहा था भाई लीवर जितना बड़ा होगा, रिजिड बार जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका फोर्स आर्म होगा। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर हम रिस्ट जॉइंट पे ही ब्लॉक करके एनालाइज करें, मान लो रिस्ट जॉइंट या एल्बो जॉइंट तक ही ब्लॉक करके एनालाइज करें, तो जो आपका एक्सिस का काम कर रहा है वो रिस्ट जॉइंट और फिंगर्स कर रहा है। अभी मैं एल्बो को ऑपरेशन में लाई नहीं, ठीक। अब आपको फोर्स कहां से मिल रही है? फोर्स आपको मिल रही है फोर आर्म की जो मसल्स है उनसे मिल रही है, ठीक। यहां से आपको फोर्स मिल रही है ऑन दिस पार्ट, मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि आपका एल्बो मैं कह रहा हूँ लॉक, आपको फोर आर्म से फोर्स मिल रही है, मैक्सिमम फोर्स जो मिल रही है। अब फोर आर्म से फोर्स मिल रही है, आपका जो एक्सिस है वो बना हुआ है ये बीच में और रेजिस्टेंस वो बॉल है, तो जहां एक्सिस बीच में आया वहां वो टाइप 1 लीवर हो जाएगा, लेकिन जरा सा मूवमेंट चेंज होगा ये लीवर भी चेंज हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ बॉल नहीं, आप अपने हाथ को ऊपर रख रहे हैं ना, तो आपका हाथ भी एक रेजिस्टेंस है। इसका एग्जांपल ये दे रहा हूं कि आप बहुत देर बाद अगर एक एक्सरसाइज करते बूस्ट करते रहिए तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ भर जाता है, लगता है हाथ नीचे कर ले, थक गए। सर नी भी एक तरह से सर उसमें आएगा। हाँ देखिए सब कुछ आएगा बाबा, यही सब कुछ सर आएगा। ने आपको मैंने बताया था कि रेफरेंस पॉइंट पहले आपको पकड़ना है। Yes, actually. किस रेफरेंस पॉइंट के इसमें लॉन्ग और से है, देखना एक्चुअली मैंने चाहते हैं। शॉर्टकट का एग्जांपल दिया था कि या एक्चुअली आपको एक फिक्स पॉइंट करना पड़ेगा, और जैसे शॉर्टकट का मैंने एग्जांपल दिया था कि जब पॉइंट ऑफ रिलीज होता है तो आपका एंकल से लेके हाथ का जॉइंट एक लाइन में आ जाता है, एक सिंगल लाइन में आता है, जिससे आप लीवर को सबसे ज्यादा लंबा कर पाते हैं। उसकी वजह से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि लीवर जगह जगह ब्रेक होगा ना, हर जॉइंट अलग अलग ऊपर नीचे दाएं बाएं काम करेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का मिलेगा नहीं। सेम बूस्टिंग में भी ऐसा ही होता है, जब आप बूस्ट कर रहे होते हो ना, आप कभी वीडियो देखना इंटरनेशनल लेवल पे, बूस्टर किसी भी पोजीशन से बूस्ट करता है ना, तो कोशिश करता है जब वो रिलीज करता है ना, तो उसका एल्बो से भी उसको एक बाउंस मिलता है, यानी जो उसका पॉइंट ऑफ रिलीज होता है बॉल का, उसमें पूरी बॉडी एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, एक सिंगल लाइन में आ जाती है, जिससे उसको फोर्स, अभी उसको ये नहीं पता कि उसका फोर्स आर्म बड़ा हो रहा है, उसको मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, बट दैट इज द पॉइंट कि कम फोर्स लगा के वो आराम से बॉल को बूस्ट कर पाता है, क्योंकि सिर्फ फोर्स उसके हाथ से नहीं आ रही, उसके एल्बो से और उसके नी से भी फोर्स आ रही, उसके कोर से भी फोर्स आ रही। दैट इज द पॉइंट। तो इन चीजों में ना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में कभी भी ये दिमाग में मत रखना कोई एक चीज काम कर। हाँ बिल्कुल, शोल्डर के लॉन्ग जाएंगे आप तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड क्लास ऑफ लीवर हो जाएगा। मैंने बोला ना फ्लैक्शन एक्सटेंशन में, मैंने बताया जब लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जब एक्सटेंशन होता है तब तो ट्राइसेप्स काम कर रही है, लेकिन जब फ्लैक्शन होता है तो बाइसेप्स काम कर रही है, और बाइसेप्स मसल खत्म होती है जाके, पॉइंट ऑफ इंसर्शन होता है उसका नीचे एल्बो के। बिल्कुल। तो जब पॉइंट ऑफ इंसर्शन नीचे है तो फोर्स वहां से लगती है, तो अब क्या है, फोर्स वहां से लग रही है, रेजिस्टेंस उसके आगे है और एक्सिस उसके पीछे है फोर्स के। तो ये टाइप 1 लीवर में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सिस बीच में नहीं, यहाँ फोर्स बीच में,
तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये जो तुम क्वेरी कर रहे हो ना बार बार रोहित, इसी से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तुम मल्टीपल जॉइंट मूवमेंट पे जाओगे, सिंगल सिंगल जॉइंट को पकड़ोगे, तभी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा तुम इसको सिर्फ किताबों में ही पढ़ के छोड़ दोगे। और मैंने तुमसे कल कुछ एग्जांपल दे के तुम्हें एग्जांपल दिया था, हॉकी स्टिक को 3 अलग अलग जगह से पकड़ के मार के देख लेना, यू विल बी वेरी क्लियर कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। ये सबसे प्यारा एग्जांपल होता है। लेग लेंथ, आप फुटबॉल को जब आपको बुलेट किक मारनी होती है ना, एक मतलब उसको तुम लोग क्या कहते हो, मेरे यहाँ तो फारूक जो मेरा कोच साहब थे वो बुलेट किक ही बोलते थे। उसमें क्या होता है, बॉल के नीचे मारते हैं, बिल्कुल लो ड्राइव भी कहते हैं उसको। हाँ, लो ड्राइव कहते हैं। इंस्टेप ऑफ फुट से मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नीचे मारते हैं बॉल के। और उसमें क्या होता है कि पैर जो आता है ना वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पीछे से आता है और मारने के बाद ऑलमोस्ट 90 डिग्री ऊपर जाता है, यानी लगभग 180 डिग्री पैर का मूवमेंट रहता है। व्हाट इज दिस? आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहे हैं एक्चुअली। और पैर अगर आपने फोल्ड किया, अगर आप नी जॉइंट से, और उसमें पैर कोशिश किया जाता है कि पैर बिल्कुल एक्सटेंडेड, इसका रीजन बता रहा हूँ। जितना पैर एकदम सीधा रहेगा उतना आपका जो रिजिड बार है, जो लीवर है, वो लंबा रहेगा, उतना ज्यादा फोर्स आर्म बड़ा, उतना ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन होगा। जैसे आप नी से ब्रेक करते हैं तो अब आपका लीवर 2 पार्ट में बढ़ गया। नी से नीचे एक लीवर काम कर रहा है और नी से ऊपर हिप जॉइंट तक दूसरा लीवर काम कर रहा है। फोर्स भी उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर, ओनली दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर, एंड इट विल कम स्लोली एंड ग्रेजुअली। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि रात में मैं सो के उठूंगा और वो जो रामायण में दिखा रहा है कि बैठा के विश्वामित्र जी सारा ज्ञान, दिव्य ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज नॉट द थिंग, इट विल टेक टाइम। सो डोंट वरी, कंफ्यूजन हमेशा अच्छा होता है। दैट इज नॉट द बैड थिंग। कंफ्यूजन आ रही है इसका मतलब कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, खुद ही समझ में आ रहा है। कहते हैं ना कि अगर तुम सवाल पूछ रहे हो मतलब तुम जिंदा हो, बाकी इस ग्रुप में बहुत से मुर्दा है। मैं आज तो जिंदा आलोक मुझे वो पूरी तरह जिंदा है। विश्वजीत हमेशा जिंदा रहता है। स्वाति भी लंबी गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन बाकी लोग नहीं। आनंद को मैं एग्जाम करता हूँ क्योंकि आनंद सवाल पूछता है और अच्छे सवाल पूछता है, तो आज उसका मूड नहीं है। तेरा कैसा है अभी? वो कीड़े का जो तेरे ऊपर प्रहार हुआ था अभी ठीक? वो दैट इज द पार्ट यार, वो ठीक हो रहा है। रेड का मतलब समझता है क्यों कोई चीज रेड होती है? आज नेट पे पढ़ना है इसके बारे में कि जब इंजरी या कोई इस तरह की चीज होती है तो स्किन रेड क्यों होती है, स्किन के कलर क्यों चेंज होते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ जो ईचिंग होती है ना, दैट इज द आल्सो पार्ट ऑफ हीलिंग। इसके बारे में भी पढ़ना। ट्राई टू गूगल एवरीथिंग। बॉडी में जो भी हो रहा है सब कुछ साइंस से बिठा, और वही फिजिकल एजुकेशन, नथिंग एल्स। फिजिकल एजुकेशन वही है, जो हो रहा है उसके बारे में सिर्फ पढ़ने लगो। पैर में स्प्रेन हुआ, पैर मुड़ गया, मतलब मेरा डॉक्टर इतना दुखी हुआ था ना पटियाला में मुझसे, मैं गया उससे बोला सर मेरे को कौन हो गया है, तो बोला नहीं कौन हो गया। फिर थोड़ी बाद ही स्टार्टेड यूजिंग वर्ड कैलस, बोला नहीं कैलस का ये हो गया। मैंने सर मेरे को कॉर्न है, तो बोला कि अबे कॉर्न कैलस एक ही होता है। मैंने कहा नहीं सर, कॉर्न जो होता है वो पेनफुल थिकनेस ऑफ स्किन है ड्यू टू फ्रीक्वेंट प्रेशर, कैलस इज पेनलेस थिकनेस है। तो जानते हो डॉक्टर मेरा क्या बोला? एक जब तू इतना जाता है साले तो जाके खुद ही अपना इलाज निकाले, भाग जाता। तो दैट लेवल ऑफ क्वेरी यू शुड ऑलवेज की मुझे क्या हो रहा है बॉडी में। अगर आपने पकड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन होना इज वेरी गुड थिंग। इंजरी होगी, चोट लगेगी, बॉल फेंकोगे, हॉकी उठाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, थप्पड़ घुसा चलाओगे ही चलाओगे, वो कीड़ा है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर था। तो जब भी कुछ हो रहा है ना तो ट्राई टू एनालाइज कि ये चीजें हो क्या रही है बॉडी में। आधा फिजिकल एजुकेशन वही खत्म हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो किताब से पढ़ लेंगे। नाउ मूविंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली। अब यहाँ 2 सवाल प्राइमरी आते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कर्वी लीनियर पाथ में होता है। व्हाट इज कर्वी लीनियर पाथ? कि मोशन तो लीनियर होता है लेकिन उसका जो पाथ होता है वो कर्व्ड होता है, पैराबोला टाइप का। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम किसी चीज को लीनियर फेंकते हैं, भाई हम किसी भी चीज को थ्रो कर रहे हैं, कोई भी, अब इसमें स्पोर्ट्स में 2 ही इम्प्लीमेंटेशन है। स्पोर्ट्स में या तो आप चीजें फेंकते हैं या खुद अपने आप को फेंक देते हैं, 2 ही चीजें करते हैं। या तो अपनी बॉडी को फेंक देते हैं, या भाई डाइवर खुद को फेंक देता है, जिमनास्ट खुद को प्रोजेक्ट कर देता है, या आप फिर शॉर्टपट फेंक देते हैं, डिस्कस फेंक देते हैं, कभी कभार गुस्सा होकर रेफरी के ऊपर कुछ फेंक देते हैं, यही चीजें करते हैं। तो व्हाट आर दीज थिंग्स कि ये चीजें क्यों नहीं लीनियर पाथ में जाती, ये कुछ दूर जाने के बाद क्यों कर्वी लीनियर पाथ में हो जाती है? उसका एक रीजन है
कि हमेशा एक फोर्स, जो न्यूटन अंकल थे जिन्होंने तीनों लॉ दी, उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम करती रहती है, और इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।